Okay. Good evening, everyone. Joshi ji, Lavi ji, Mitesh ji, and Anushka ji. Good evening, everyone. Today we are going to start with our silver batch. Silver batch means working professional, non-working professionals, and of course, women, those who are at home. They have so much of energy to learn skill, any new skill, and later on they can monetize in future. So that's the motto of these batches, like in MWF 9:30 to 10:15 or 10:30, approximate 45 to 1 hour. Okay. These are the reasons basically. So basically, why I have started this batch for working profession. Kids, we were working in the summer camp. Many kids are continuing with us in the evening batches, like from 6:30 and on Saturday and Sunday. But working professionals also needs to learn how to integrate AI into your day-to-day work, especially Excel sheets and other things. Of course, there are many tools which we are going to explore throughout the year. And also non-working women, those who have the capability, have the time, but they don't know how to learn, how to start from which topic, how to start from 0 to 10, how they can upscale themselves. So, like this, we are going to discuss. We will discuss a roadmap also in the coming days. And today, basically, before going ahead with the topic, today's topic is Excel AI. How you can integrate AI into Excel. Okay, means without using formulas. आपको formulas learn करने की जरूरत ही नहीं है. Everything will be done with the AI only. Okay, there are two ways. Automatic this Gemini we can integrate, and of course ChatGPT is there which will help us like anything. But we should know how to use it. For example, simple thing I will tell you. Suppose if I am making any dish and I don't know which ingredient has to put at what time, then what will happen? Dish will not be that much tasty and वो proper पकेगी ही नहीं. We know AI, but we don't know how to use it. हमको पता है कि चैट जीपीटी है, हम कर लेते हैं, but we don't know exactly how to use it properly. So this is a platform where we are going to teach you. Just before starting, going ahead, I want just write your profession in the chat. What you do basically? Business, 9 to 5 job, but 9 to 5, what kind of job? You are a software engineer or you are educator, whatever you are. Please write in the chat. I want to just see how curious you are about your profession and how means do you have that hustling attitude or not to integrate AI into your profession and your business. Just type your profession in the chat. What do you do basically? अच्छा I am just waiting for your messages. अच्छा एक chat kindly option. enable the chat. Okay, just a minute. It is unable, I think. Just a minute. I think it is unable. Host tools. No, sir, it's disabled. I am Dipti Diwakar. The chat is Now, disabled. now, can you just see now? Is it now? Is it working? Yes. Yes. Okay. Now, please tell me what you do basically. What is your profession? Business है, job है, but job है तो किस type का job है? Software engineer you are, whatever like this. I just want to read it. क्योंकि मैंने वो Excel में आपको डाटा जरूर फिल करवाया था, but टाइम नहीं मिला. Okay. I am happy to teach homemakers, non-working women. My target, at least with the help of my platform, at least 1,000 women should become entrepreneur in one or coming 1.5 years, within 1.5 years. Okay, that's great. Software engineers are there. Okay, event management and audio visual service. That great, sir. आपके लिए तो बहुत काम आने वाला है AI. बिल्कुल लव जी. हाँ, सर बहुत काम आएगा. जी एंड दीप्ति दिवाकर होम मेकर. ओके, मितेश शाह जी ने नहीं बताया. मितेश शाह, व्हाट यू डू सर? आपने नहीं बताया मुझे. व्हाट यू डू बेसिकली? ओके, whenever you have time you can. Okay, let's start basically with a simple thing. See, my motto right now, everybody is at zero level, whether you are software engineer, whether you are businessman, whether you are any scholar from IIT or IM, it doesn't matter to me. Right now everybody is zero, and I will start from 0 to 100. Okay, so slowly. Okay, that's entrepreneur, social activity and sports fund. That's great, sir.
sports person also, I like it. So means you have hustling power. Definitely you will learn a lot from our platform. Okay, let's continue. मैं एक आपको एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ. क्लियर? एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, सी मेरा जो यूज केस है वो मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है. आपका हो सकता है कि ये सीखने के बाद आप अपने हिसाब से उसमें फॉर्मुलेज एंटर करोगे इन द एक्सेल शीट्स. क्लियर? तो नॉर्मल एक्सेल शीट कैसा होता है पहले तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं. व्हाट आर द थिंग्स. बहुत से लोगों ने एक्सेल शीट काफी दिनों से देखा ही नहीं होगा क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ता है, स्पेशली होम मेकर्स. उनको कोई जरूरत का कुछ है नहीं वो एक्सेल शीट. बट वेन यू स्टेप इन टू द मार्केट, जब आप मार्केट में आ गए हो, इट मीन्स आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना आना चाहिए, डाटा मेंटेन करना आना चाहिए. ओके, आपको डाटा मेंटेन करना आना चाहिए. वॉट एवर द डाटा विल कम टू यू वेन एवर यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर और यू विल ओपन योर ओन कोचिंग और वॉट एवर एनी बिजनेस, आपको एक्सेल शीट पे ही डाटा मेंटेन करने में सबसे आसानी होगी. क्लियर? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक एंड टुडे आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल जंप टू अ एआई टूल, गूगल जेमिनाई. उसका एग्जैक्ट केसेस मैं बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है. एंड आपने एक टूल के बारे में सुना होगा, वीईओ, जो कि रियलिस्टिक वीडियोस बना रहा है जस्ट राइटिंग द प्रॉम्प्ट. इट हैज चेंज द होल मूवी इंडस्ट्री एंड राइट नाउ इट्स वर्जन इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, but in Google Gemini paid version it is available. I will show you that also. Okay, let's explore the Excel sheet. I hope everybody must have observed about Excel sheet once, at least once in their life, whether they are businessman or working professional. कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा. यहाँ पर फाइल का ऑप्शन होता है. दिस इज होम. These columns you can see condition. Slowly in the coming weeks I will explain every part, how to merge and center, how to use this conditional formatting, format as tables, cell styles, everything I am going to teach you, but slowly. Today we are not going to explore all these things. We are going to experience the formulas, which kind of formula we need to take from AI open chatbot. तो उससे हम कैसे लेंगे और यहाँ पर कैसे पेश करेंगे और कैसे हमारे पास सारा डाटा रेडी हो जाएगा. ओके, इसके ऊपर और देखते हैं. इंसर्ट में सो मेनी थिंग्स आर देयर. अगेन यू कैन से मैप्स, पाइवट चार्ट, लाइन, कॉलम, विल, नॉच, स्लाइसर, एवरीथिंग इज देयर. देन ड्रॉ में सो मेनी थिंग्स आर देयर. पेज लेआउट, पेज लेआउट तो जैसे वर्ड में होता है वैसा ही है. फॉर्मुलाज, फॉर्मुलाज मैं नहीं यहाँ से सिखाऊंगा आपको. नथिंग टू वरी अबाउट. हम यहाँ से फॉर्मुलाज नहीं पढ़ेंगे. हम फॉर्मुला खुद डिजाइन करेंगे अपना खुद, जस्ट बाय राइटिंग प्रॉम्प्ट. ये जो नीचे प्रॉम्प्ट लिखा है ना, इसी टाइप का आपको प्रॉम्प्ट रेडी करना है बस. तो हम वापस आते हैं होम पर और कुछ नहीं करना है. इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूंगा चैट जीपीटी के बारे में. व्हाट इज चैट जीपीटी, थोड़ा सा आपको ना उसका आइडिया पता होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन ना, आपको पता ही नहीं लगेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एआई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल. टूल और ओपन एआई में क्या डिफरेंस, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए. क्लियर? आपको मानो ठीक है. उसने प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट. जब मैं बोलूं तो आप अनम्यूट कर लेना. हम आते हैं चैट जीपीटी के पास. थोड़ा सा हम समझेंगे इसको, जस्ट लिटिल बिट, नॉट दैट मच. तो इसको हम यहाँ पर एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर सिंपली जब आपको चैट जीपीटी के पास जाना है, क्योंकि इसका वर्जन चेंजेस होते जा रहे हैं, तो हो सकता है आप करेक्ट लोकेशन पर ना पहुंच पाओ. तो आपको टाइप करना है चैट जीपीटी. ये जो चैट जीपीटी ना, थोड़ा सा मैं ह्यूमर वे में बोल रहा हूँ कि ये ऐसा एक टूल है, टूल नहीं बोलूंगा, ओपन एआई प्लेटफॉर्म है जो एक फ्रेंड का काम करता है आज के डेट में. अगर थोड़ा सा बात इस नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, और ये पूरे मिलियंस ऑफ जो भी हमारे अर्थ पर जितने भी लोग हैं, एक्स वाई जेड एनी बडी, सब इसको यूज कर रहे हैं. एवरीवन. मैं बोलूंगा अगर कोई एक मॉन्क है ना, मॉन्क, संत, वो भी इसको यूज करता है. एवरी वन इज यूजिंग. बट इसका करेक्ट यूजेस हमको आना चाहिए. तो सिंपली हमको ये सर्च में जाके इसको टाइप करना है. अगर तो आपको फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाले चैट जीपीटी पर क्लिक करके GPT-4 लिखा है, वहां पर अगर इस तरह के अगर आपको दिखते हैं तीन पॉइंट्स लाइक रीड पेपर, व्यू सिस्टम कार्ड, ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस, इसको लेकर आप वापस आ जाना. या इस पर आप एक बार चेक कर लेना ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस पे आपका प्रीवियस डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर ये आ रहा है तो ठीक है, यस. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस पर जाना है. रीड पेपर पे क्लिक नहीं करना है, व्यू सिस्टम कार्ड पे भी क्लिक नहीं करना है, ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस पर क्लिक करना है. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस.
फिर यहां पर आपको बहुत सारे ओपन होकर आ जाएंगे। अब ये जो मैंने ऑलरेडी पास्ट में जो जो सर्च किया है वो मेरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री 30 डेज तक रहती है विदाउट पे वाले में, मींस फ्री वर्जन में। पेड वर्जन आपके पास चैट जीपीटी को तो वो फॉर एवर सेव रहती है। ये पिछले 1 मंथ का मेरे पास है पूरा डाटा, और थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे डिलीट हो जाता है अगर मैं उस पेज को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और ये पेज अगर मैं थोड़ी देर नहीं कर रहा हूँ यूज, पनीर टिक्का मैरिनेशन रेसिपी मैंने फाइंड आउट करी थी, तो अगर वो थोड़े दिन में वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पीछे 30 डेज का बैकअप ये रखता है, बस इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? फ्री वर्जन है ना, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो न्यू चैट। कभी भी आपको न्यू चैट ओपन करना है, न्यू पेज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन दिस बॉब प्रॉक्टर मैनिफेस्टेशन, ओके, आई वॉज सर्चिंग अबाउट दिस पर्सन yesterday. One person told me search about this, how to manifest. सो दिस वॉज इन माई हिस्ट्री। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन होकर आ गया। आप भी करना। मैनिफेस्टेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना है ना, तो मैनिफेस्टेशन किया करो, ठीक है? तो मैं बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन भी देता रहूंगा, मेरी आदत है, बिकॉज आई वॉज टीचर एंड अकेडमिक कोऑर्डिनेटर एंड नाउ आई एम फ्रीलांसर बेसिकली। सो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना, तो यहाँ पर देखो आप, ये इधर इसको बंद करो। यहाँ पर आपको एक न्यू चैट ओपन आ जाएगा। देखो जब ये ओपन रहेगा ना, तो आपका यहाँ पर आपको कुछ भी ओपन होता हुआ न्यू चैट का नहीं दिखेगा ऑप्शन। इसको पहले क्लोज करो, फिर एक पेंसिल दिखेगी आपको, यहाँ पे न्यू चैट लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो ब्लैंक पेज आ गया, फिर से न्यू ब्लैंक पेज। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा से जीपीटी के बारे में। व्हाट इज जीपीटी? मेरे को फुल फॉर्म पता है, इट इज प्री बेसिक चैट मींस नॉर्मल चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? जीपीटी फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हो, जीपीटी फुल फॉर्म, जस्ट सी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब क्या है? इसमें ऑलरेडी बहुत सारा डाटा इनपुट किया गया है, 2-3 साल में नहीं किया गया है। यू माइट बी थिंकिंग, अरे चैट जीपीटी तो 2023 में ही आया था, 2023 में आया था ओनली। सो अभी अभी न्यू बना? नो, इसकी शुरुआत आज से 50 इयर्स बैक हो गई थी। 1979 में इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, तब से डाटा फीड हो रहा है। ये अभी का नहीं है। मशीन लर्निंग जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट साइंटिस्ट हुए और ये सब जो इंजीनियर्स हुए, इन्होंने इसके अंदर डाटा फीड करना तब से स्टार्ट कर दिया था। वो आज जाके 2023 में इन्होंने फिर लॉन्च किया। उनका विजन तब से था, ओके, लाइक दिस समथिंग शुड बी देयर विच विल एक्ट एज अ ह्यूमन। ये पूरा ह्यूमन की तरह एक्ट करता है। आप जो पूछोगे उस टाइप का आंसर देता है, ये गूगल से भी आगे बढ़कर देता है। तो बेसिकली क्या करता है, जनरेटिव इट कैन जनरेट और क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, प्री ट्रेन्ड, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिफोर बीइंग फाइन ट्यून्ड और यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क इसमें अंदर पुट किया गया। ट्रांसफॉर्मर क्यों? इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। व्हाट इज डीप लर्निंग मॉडल? ये एक तरीके का जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है, इट्स डीप लर्निंग मॉडल, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उस पर इसकी पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ये डाटा साइंटिस्ट जो अपना डाटा साइंस बेसिकली जो हमारा फील्ड है, उस फील्ड से ये जनरेट हुआ है बेसिकली। क्लियर? एंड इंट्रोड्यूस बाय गूगल इन 2017, क्योंकि पहले सिर्फ डाटा को डाला गया, 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ विच इज एक्सीलेंट एट हैंडलिंग सिक्वेंशियल डाटा लाइक लैंग्वेज। अब तो बहुत कुछ कर रहा है। जब आया था पहले इमेजेस नहीं बनाता था, बहुत कुछ नहीं करता था, डाटा भी प्रॉपर आंसर नहीं देता था, अब बहुत एडवांस होता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जीपीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्री ट्रेन मतलब इसको प्री ट्रेन किया, अब ये सेल्फ ट्रेन भी करता है। मैं पूछूं इससे क्या? इज चैट जीपीटी सेल्फ गिविंग सेल्फ ट्रेनिंग टू इटसेल्फ? पूछते हैं जरा एक बार, क्या कहता है? ग्रेट क्वेश्चन। इससे बोला नो, चैट जीपीटी डज नॉट ट्रेन इटसेल्फ, बट इनिशियल प्री ट्रेनिंग हो गई, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक हो गया। यहां पर आपको समझने वाली चीजें हैं। यहां एक चीज समझने वाली है, यहां पर देखो ध्यान से। रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, RLHF, आफ्टर प्री ट्रेनिंग humans help fine tune it by ranking different responses and guiding its behavior। इसका मतलब यही होता है, भले ही ये नो बोल रहा है यहां पर,
कि ये अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहा है खुद से, बट हम इसको हेल्प कर रहे हैं ट्रेन करने में। कैसे? ड्यू टू दिस RLHF मेथड, रेनफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। हम इसके अंदर पुट करते हैं डाटा, फिर एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, फिर एक और डालते हैं, तो अपने आप को ये समझ जाता है कि ये मेरे से क्या चाह रहा है। तो अगली बार जब आप पूछोगे ना उसी टाइप का सवाल, तो ये आपको याद रखिएगा कि दिस इज द पेज ऑफ अमित ओनली, और दिस इज द पेज ऑफ जोशी ओनली, दिस इज द पेज ऑफ लवी ओनली। आपको उसी नाम से भी बुलाएगा ये। क्लियर? तो ये अपने आप को फिर इस तरह से ट्रेन करता है, अपने आप को फाइन ट्यून जरूर कर लेता है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर, जिससे आपको हम गाइड करते हैं इसको बेसिकली। वाई चैट जीपीटी कैंट सेल्फ ट्रेन? बिकॉज इट डज नॉट स्टोर मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, ये स्टोर नहीं करके रखता। ठीक है? ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स कन्वर्सेशन अनलेस एक्सप्लिसिटली अलाउड, एंड इवन देन इट डज नॉट लर्न इन द वे ह्यूमंस डू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड चैट जीपीटी मॉडल। ये एक एआई टूल नहीं है, एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। ये टूल्स अलग होते हैं, ये एक चैटबॉट है। क्लियर? जिसमें कि बहुत सारा डाटा को ट्रेन करके इसके अंदर इनपुट किया गया। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था चैट जीपीटी के बारे में। अब बात करते हैं यूज कैसे करना है एक्सेल में। अब वापस आता हूँ एक्सेल वाली शीट पर, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ इसे और एक्सेल की शीट दिखाता हूँ। अब फॉर्मुलेज कैसे याद नहीं करने हैं, फॉर्मुलेज मुझे याद नहीं करने हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, माइट बी इन विच एवर इंडस्ट्री यू आर, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा डाटा मिले और बोले कि वहां पे सम ए नंबर्स का ऐड करो, सम ऐड करो। जैसे यहाँ पर एक एजुकेशन इंडस्ट्री से मैंने लिया है कि कुछ बच्चों का यहाँ नाम लिखा हुआ, स्वीटी, श्वेता, कशिश, प्रीति, लाइक दिस। दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। स्वीटी स्कोर्ड 45 इन हिंदी, 55 इन इंग्लिश, मैथ्स में 67 अभी है। अब मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तभी तो उसका आंसर आएगा। तो मुझे एक प्रॉम्प्ट डालना है, सिंपल। अब हाँ, प्रॉम्प्ट क्या होता है, माइट बी, क्योंकि सबकी फर्स्ट क्लास है आज, तो फटाफट अब आते हैं प्रॉम्प्ट्स के बारे में, फटाफट एक मिनट में समझ लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, वापस एक्सेल पे आ जाएंगे अपन, ठीक है? जैसे जैसे मुझे डाउट्स आ सकते हैं तो आपको मैं समझाता जाऊंगा। क्लियर? प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। जो मैं आपको ये दे रहा हूं ना, अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, बट यही एआई लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट्स बोला जाता है। PROMPTS, प्रॉम्प्ट्स। पूछ लो आप इससे, प्रॉम्प्ट्स आ जाएगा कि क्या होता है प्रॉम्प्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉम्प्ट इज एनी इनपुट यू गिव टू एन एआई लाइक चैट जीपीटी। क्लियर? टू गेट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लाइक creative prompt, educational prompt, so many prompts आर देयर, मीन डिफरेंट कैटेगरीज। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन कर सकते हो। लाइक ईमेल के अकॉर्डिंग हमने कुछ पूछा है तो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देगा, लाइक दिस। ओके? सो प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। इतना सा आपको याद रखना है, हम आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देंगे, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ये मुझे आंसर देगा, तो उसको हमें प्रॉम्प्ट बोलना है। बस इतना सा था प्रॉम्प्ट के बारे में। वापस आ जाओ एक्सेल पर, कम ऑन द एक्सेल, यस। सो अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला, अब जितने भी एक्सेल के जो एक्सपर्ट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो फॉर्मूलाज उनको याद होंगे। भाई मैंने तो कभी एक्सेल पे फॉर्मूलाज नहीं लगाए, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ज्यादा काम नहीं पड़ा। होता था तो मेरे पास एक असिस्टेंट होता था, ठीक है, जहां पे भी मैं करता था वही एक्सेल का डाटा मेंटेन कर लेता था। अब मैंने खुद करना सीख लिया, बिकॉज आई नो एआई। कैसे? ये प्रॉम्प्ट याद रखना है, वो मैं आपको ये नोट्स दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग्स हमेशा लाइफ टाइम रहेंगी, और ये नोट्स आपको मिलेंगे एक प्रॉपर एक जगह पे। इन एक्सेल B3 to F3, अभी B3 से F3 क्या है अब ये भी समझो। बी देखो यहाँ पे लिखा है बी, बी कॉलम, उसका थर्ड रो, यहां पर ध्यान से, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं ना, मुझे फॉर्मूला बस इधर पे लगाना है। यहां पे देखो ग्रीन बॉक्स, ये चारों तरफ ग्रीन कलर की एक लाइन आ गई डार्क, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाना है वो मैं भी चैट जीपीटी से पूछूंगा, बट उसको एक इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे भाई, कि B3 से लेके F3 तक, बी से लेके ये 3, ये रहा कॉलम B3, और ये F3 तक वैल्यूज आर देयर। वैल्यू होती है ना, 45, 55, 67, 89, दीज आर वैल्यूज, नंबर्स या वैल्यूज कुछ भी बोल दो। तो हम उसको बोलेंगे वैल्यूज आर देयर, आई वॉन्ट टू गेट सम, मुझे इनका सम चाहिए, ये सारी वैल्यूज का सम चाहिए। अभी मैं नीचे वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में भूल जाओ, ये जो मैंने अभी शेड किया है भूल जाओ इसके बारे में, अभी बस इसके बारे में याद रखो। जस्ट थिंक अबाउट दिस ओनली। आई वॉन्ट टू गेट सम, गिव मी फॉर्मूला। तो मैंने ये कंट्रोल C किया, ये फॉर्मूला, ये प्रॉम्प्ट मैंने अभी डिजाइन करके रखा हुआ है। चैट जीपीटी पर आएंगे और वहां पर ये फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स सी।
और क्या मेरा सच में वो आंसर फॉर्मूला देता है कि नहीं देता। यहाँ पे मैंने ये कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है, ये हटा देना, ये नहीं लेना। इन एक्सेल, एक एक्सेल शीट है, B3 से F3 तक, वहां पर वैल्यूज आर देयर, आई वांट टू गेट सम, गिव मी फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख दिया है नॉर्मल, शॉर्ट में लिखो, ये समझ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। फॉर्मूला इज दिस, इक्वल टू सम ब्रैकेट B3 टू F3, इज टू मतलब B3 से F3 तक का। ये यहां से हमें देखो, या तो दो तरीके कॉपी करने के, या तो ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर लो, कंट्रोल+C करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल बटन दबा के C दबाओ तो कॉपी होता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ कॉपी, तो यहाँ से कॉपी कर लो। ये कॉपीड हो गया, ये डाटा कॉपी हो गया है, ये जो लिखा है ना फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। वापस आ जाओ एक्सेल शीट पर, एक्सेल शीट पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर? और कहाँ करना है वो ध्यान से देखना, बस वही गलती होती है। ये किसके बारे में मांगा था, B3 से F3, तो इसके सामने वाले कॉलम पर, यहां पर देखो ध्यान से, B3 ये रहा, F3 ये रहा, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनका सम, यहां लिया, कंट्रोल V किया, सम आ गया। कंट्रोल V करके एंटर दबा दो। कभी कभी एंटर बिना दबाए भी आंसर आ जाता है, और कभी कभी सिर्फ कंट्रोल V करने पे ही फटाफट आंसर आ जाता है। अब आप चाहे चेक कर लो, क्रॉस चेक करना है आपको, वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। जस्ट सी, यहां पर देखना जरा, नीचे देखना, यहाँ पे कुछ दिखेगा आपको, इधर पे देखो, यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो नीचे 347 दिख रहा है सम, यहाँ पर देखो, काउंट 5 यानी 5 कॉलम थे, उसका सम 347 आ रहा है, देखो यहाँ पे 347 क्रॉस चेक हो गया। फॉर्मूले क्यों याद करने हैं, नो नीड ऑफ लर्निंग द फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करें, यहां पर आप क्लिक करो, यहां तो आंसर आ ही नहीं रहा, यहां पर तो आंसर आ ही नहीं रहा है। तो भैया सिंपल सा ध्यान से देखना, मैं को क्या कर रहा हूं, इसको सिलेक्ट किया, यहां पर देखो जैसी कॉर्नर पर आऊंगा मैं, एक प्लस का साइन बन जाएगा, एक प्लस का साइन बन जाएगा, इसको अपने माउस से ड्रैग कर देना नीचे, सिलेक्ट करके इसको देखो इस तरह से ड्रैग कर दो नीचे धीरे से, बस आंसर हो गया सारा खत्म, सारे सम्स हो गए आपके, ये देखो सबके वो फॉर्मूला सब जगह पेस्ट हो गया। बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्ट करना, उसी पूरे कॉलम में। क्लियर? फिर से देखो जरा ध्यान से, यहां पर था, यहां पर एक फॉर्मूला, अभी देखो फॉर्मूला कहां दिखेगा, यहां दिखेगा ऊपर देखो, FX फंक्शन ये लगाया आपने फॉर्मूला, FX इक्वल टू फॉर्मूला बार। ये एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला बार होता है, ये जो होता है ना ऊपर, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं यहां पर, ठीक है। कंट्रोल Z करो, जस्ट अ मिनट, हिट द एंटर बटन, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिखेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे करो तो ब्लैंक हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है, तो ड्रैग करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रैग करो, ये पकड़ो प्लस साइन बन जाए, यहां से ड्रैग कर दो, ऐसे आपकी एक्सेल शीट तैयार है। अब आपके पास हो सकता है ऐसे 100 बच्चे हों, या क्लाइंट्स हो आपके पास, या आपके पास वेंडर्स हो, तो वहां पर आपके ये ऊपर रुब्रिक्स चेंज हो जाएंगे बस। यहाँ पे जैसे सपोज स्वीटी ने आइटम 1 खरीदा कि नहीं खरीदा, आइटम 2 खरीदा कि नहीं खरीदा, यहाँ पे सिंबल चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो आइटम 1 प्रोडक्ट 1, देन आइटम 2, कुछ भी हो सकता है ना। स्वीटी ने आइटम 1 खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, यहाँ पे कितने रुपीज में खरीदा, तो उसका सम निकाल रहे हो आप, सिंपल। तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती रहेंगी चीजें। क्लियर? यहां तक अगर सबको क्लियर है, ये पहला, ये फर्स्ट केस है, मेरे कुछ 8-9 केसेस है, मैं आज आपको जितने पॉसिबल होगा बताऊंगा, क्योंकि गूगल जेमिनाई भी पढ़ाना है, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है, अच्छा ये इसकी इसकी टेंशन मत लेना, ये मैं आपको फॉर्मुलेस दूंगा, एक आपका प्रॉपर नोट्स बनेगा, जहां रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आपको उसी फोल्डर में आपको नोट्स का भी एक वहां पे मिल जाएगा फोल्डर, उसमें आप नोट्स कभी भी देख सकते हो ये वाले, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर, टाइप यस इन द चैट, कम ऑन, चैट में लिख दो यस, अगर नहीं है तो डाउट लिख दो, डाउट, DOUT, डाउट, जल्दी से फटाफट। अगर आपको क्लियर है तो यस लिख दो, अगर क्लियर नहीं है तो डाउट लिख दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ने से अच्छा है पहले हम धीरे धीरे बढ़े आगे। प्लीज एवरी वन पार्टिसिपेट इन द चैट, जोशी जी, दीप्ति जी, अनुष्का जी, सुमित जी, एवरी वन प्लीज पार्टिसिपेट, टाइप यस इन द चैट, कम ऑन यार, अगर आपको क्लियर है तो, अयांश गुप्ता, लवी जी, एवरी वन प्लीज। हाँ अगर क्लियर है तो फटाफट हम आगे बढ़ते जाएंगे ना फटाफट, अगर आपको क्लियर है, नहीं है तो ईमानदारी से बता देना, बिकॉज यू आर पेइंग, ठीक है ना, कोई फ्री में यहाँ क्लासेस आप लोग नहीं ले रहे हो मेरे से, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको मेरे से बार बार पूछना है। इज इट क्लियर? सो ये अपन को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलना है। क्लियर? नेक्स्ट केस अब देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट केस, इसमें क्या है। एग्जाम्पल 2 मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, उसमें देखते हैं क्या है। हाँ, अब इसमें है, यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ ये फॉर्मूला अभी।
हाँ, अभी फॉर्मूला हटा दे। तो यहां पर क्या है, कुछ बच्चों के नाम है, उस सब्जेक्ट्स के नाम है। पास और फेल बताना कि बच्चा पास है या नहीं। अब ऑब्वियसली बात है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 33% से मार्क्स नीचे हैं तो फेल होगा, ऊपर है तो पास होगा। बट यहां मैंने क्राइटेरिया रख दिया। अब हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, सपोज कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो, यू आर डूइंग ए प्रोजेक्ट। उसमें बोला है कि अगर मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ऊपर उससे, तो मैं इसको पास की कैटेगरी में डालूंगा। अगर 40 से नीचे हो तो फेल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। ठीक है। 40 रुपीज से ऊपर का हुआ तो मैं, मेरा प्रॉफिट होगा, मैं पास कर दूंगा इसे प्रोजेक्ट को। और नीचे हुआ तो फेल कर दूंगा उसे। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप इस तरह से समझ लेना कि यहां पे मैंने बच्चों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं। अगर किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में ग्रेटर देन 40 का मैंने रेंज रखा है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू शो पास इफ ऑल सेल्स फ्रॉम B3 से F3। B3 क्या होता है, फिर से देखो, बी कॉलम, ये रहा बी, ये कॉलम होते हैं, इस तरह से कॉलम दिखेंगे आपको, ये कॉलम्स होते हैं, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जी कॉलम। और ये रोज होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये कॉलम रोज ऐसे चलती हैं। ठीक है। पूरा बेसिक से बताऊंगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आप लोग को जीरो आता है। क्रिएट अ फॉर्मूला टू शो पास, पास करो अगर इफ ऑल सेल्स फ्रॉम B3, B3 ये है ना, बी कॉलम और थर्ड के सामने, ये देखो ध्यान से B3, ये देखो यहां से लेके यहां तक का है, पूरा सिलेक्ट हो गया, ये पूरा बी कॉलम, और यहां से देखो ये 3 यहां तक का, 45 तक का। ठीक है, ये B3 होता है। और F3 तक अगर कहीं पे भी 40 से ऊपर मार्क्स है तो पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। सिंपल सा मतलब यही हुआ ना। क्रिएट अ फॉर्मूला टू शो पास इफ ऑल सेल्स फ्रॉम B3 टू F3 इज हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 40। अगर नहीं हुआ इसका अपोजिट क्या होगा, तो फेल होगा। सिंपल सी बात है। तो लेट्स चेक इसको। ये प्रॉम्प्ट है, ये दिस इज प्रॉम्प्ट। कंट्रोल C, कॉपी किया, चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, फॉर्मूला मांगूंगा उससे, क्रिएट अ फॉर्मूला। मुझे नहीं पता क्या है फॉर्मूला, आई डोंट वांट टू अप्लाई माय ब्रेन। भैया एआई का जमाना है, फटाफट काम करना है। सिंपल प्रॉम्प्ट किया यहाँ पे। ठीक है। हिट द एंटर बटन, फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। कौन याद करेगा इतना बड़ा फॉर्मूला? क्यों करना है जब एआई है ना, क्यों करूं मैं इतना बड़ा फॉर्मूला याद? सिंपल, यहीं से पूछूंगा मैं तो हर चीज। कॉपी किया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं फॉर्मूला, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। बस मुझे पता कि मेरा प्रॉम्प्ट सही है, प्रॉम्प्ट पे मुझे भरोसा है। प्रॉम्प्ट पे भरोसा है तो फॉर्मूला सही आएगा। मुझे नहीं पता ये इफ क्या है, ये फिर ब्रैकेट आ रही है, फिर काउंट इफ, मुझे नहीं पता, मुझे नॉलेज ही नहीं है उस लैंग्वेज की। ये वैसे तो नॉलेज, ये लूप है बेसिकली, लूप लगा है एक तरीके से। इफ इफ एंड ये सब लूप्स होते हैं, उस टाइप से बनाए फॉर्मूला। कंप्यूटर लैंग्वेज है C++, उधर से बनता है ये सब चीजें। ठीक है। तो C++ वाली लैंग्वेज में ये बना है, इफ कंडीशन है, कंडीशन है ये, जिसने भी लैंग्वेज पढ़ी होगी कभी। तो ये कॉपी कर लिया मैंने, कॉपीड हो गया। वापस आ जाओ अपने एक्सेल के पास। ठीक है। एक्सेल शीट के पास आओ, वहां पे फॉर्मूला पेस्ट कर दो। सिंपल। यहां पर पहले कॉलम में ही करना है, इधर पे। जब भी फॉर्मूला बनेगा पूरे कॉलम का नहीं बनेगा, एक बॉक्स का बनेगा, एक बॉक्स का बनेगा, बाकी हम पेस्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो यहां पे कंट्रोल V किया, पास आ गया। क्यों आया पास? क्योंकि कंडीशन क्या थी, अगर सारी वैल्यूज 40 से ऊपर है तो बच्चे को पास कर देना, और गलती से अगर एक भी 40 से नीचे हुई तो देखो फेल आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं ये करूंगा ड्रैग, अब ये देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया। देखो ड्रैग कैसे करना है, पहले उसको बॉक्स को सिलेक्ट करना है, मतलब सिंपल एक क्लिक करना है तो एक ग्रीन कलर की बॉर्डर बन जाएगी। उसको नीचे धीरे से ड्रैग कर दो, बस आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो पास फेल आ गया। क्यों? क्योंकि 34 आ गया ना यहाँ पे। ये 34 यानी 40 से नीचे तो फेल होना ही था उसे। यहाँ देखो 24 फेल होना ही था। यहाँ देखो 35 फेल होना ही था। क्लियर है? टाइप यस इन द चैट, कम ऑन, टाइप यस इन द चैट। ये देखो फॉर्मूला क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। इक्वल टू इफ काउंट इफ B3 टू F3 ग्रेटर देन 40, इक्वल टू कॉलम्स B3 टू F3 पास फेल। अरे क्यों दिमाग लगाना जब एआई है तो यार। इफ यू थिंक दिस इज गोइंग ऑसम, प्लीज राइट ऑसम ऑल्सो इन द चैट। अगर आपको लग रहा है ना कि दिस टेक्निक इज ऑसम, राइट ऑसम इन द चैट। समझ में भी आ रहा है और ऑसम भी है तो प्लीज। और कितनों ने ऐसे यूज किया ये भी बताओ मुझे। यहाँ जितने भी हमारे पास इंजीनियर्स बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स, क्या उन्होंने इस तरह से एक्सेल को यूज किया है कभी? सच सच बताना, यस और नो। जोशी जी एंड वन मोर वाज देयर आई थिंक, जिन्होंने बताया था मेरे को। नो, जोशी जी सेइंग आल्सो नो। एंड वन मोर वाज देयर आई थिंक, हु वाज दैट? सुमित जी। सुमित जी, हैव यू एवर यूज एक्सेल विद दिस काइंड? कभी आपने एआई का इस तरह से इसमें यूटिलाइजेशन किया है क्या? सुमित जी इज देयर? ओके, यस, दैट्स ग्रेट देन।
जोशी जी ने नहीं किया। जोशी जी, यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग टुडे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फॉर्मूले से आप लर्न करते जाओ धीरे धीरे। हम धीरे धीरे इसमें वीबी क्या होता है, देन वीबीए मतलब, और मैक्रोस क्या होता है, धीरे धीरे उस पर भी हम जाएंगे आगे। बट अभी बताएंगे आपको पहले थ्योरी भी थोड़ी सी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10:05 हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो आगे शेयर करते हैं। देखो, 9:30 से 10:15 तक तो एक मैंने एक टेंटेटिव टाइम रखा है, वो 10:30 तक जा सकता है। आप तो 1 घंटा मान के चलो। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ने में, जब हम पढ़ रहे हैं तो एकदम खुल के पढ़ेंगे और डीप नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम देख के मैंने क्लास बंद कर दी, नो। टॉपिक को थोड़ा सा एंड तक तो जाना ही है। फिर थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। इट डजेंट मैटर, टाइम डजेंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए और आप इंजॉय करने चाहिए। अगर आप इंजॉय करो तो मैं तो रात के 11 बजे तक पढ़ा दूं। क्लियर? एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर समझो जरा, यहां पे कंडीशन क्या है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं, 1 मिनट जरा। यहां पर है, स्टूडेंट्स के नेम लिखे, मैंने लिखा है राधा सिंह, अंशु पवार, मोनू, राहुल, अमित, सुधा, अनिल कुमार। यहां पर जरा थोड़ा सा समझना क्या है। राधा सिंह का फर्स्ट लेटर कैपिटल है आर, बाकी स्मॉल है। फिर एस कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, और उसके बीच में एक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंशु में क्या है, देखो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था बट स्मॉल है, और यहाँ पे डबल स्पेस है पवार में। अंशु और पवार के बीच में डबल स्पेस है। मोनू कॉर्नर में है, राहुल बीच में है, अमित यहां पर है, उसका स्मॉल है लेटर पहला, सुधा बीच में, उसका स्मॉल है लेटर, अनिल में दोनों जगह स्मॉल है, और कैपिटल वो स्पेस भी बहुत ज्यादा है, डबल स्पेस है ये। अब क्या करना है, मुझे इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करना है कि ये पूरा एक अलाइनमेंट में हो जाए, पूरा अलाइन हो जाए, ये फुल अलाइनमेंट हो जाए। क्रिएट अ फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम सेल B3। B3 सेल लेयर। फॉर्मूला अगेन बता रहा हूं, एक ही सेल का बनता है, एक बॉक्स का, एक डब्बे का, पूरे कॉलम का नहीं बनाना है। वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। फॉर्मूला विल बी ऑफ ओनली वन, दैट इज B3। क्रिएट अ फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम सेल B3 एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। सब अपर केस में हो जाने चाहिए। ये लिए कॉपी किया, Ctrl+C, यहां पर आए अपन चैट जीपीटी के पास। प्रॉम्प्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिकली हम। प्रॉम्प्ट आप धीरे धीरे सीखोगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी प्रॉम्प्ट आप सीखते जाओगे। ये हमने कर दिया, ये गलती से वो आ जाता है अटैच किया हुआ, क्योंकि वहां से कॉपी पेस्ट करो ना। हिट द एंटर बटन, फॉर्मूला रेडी। फॉर्मूला पढ़ूंगा मैं नहीं, सीधा कॉपी करो। फॉर्मूला रेडी है, पकड़ा, ये कॉपी किया, वापस आए एक्सेल के पास, खत्म। पेस्ट करो, मेरा काम होने वाला है फटाफट। यहाँ पे कहाँ पेस्ट करना है बस वो देख लेना। राधा के सामने ही करोगे ना, यहाँ पर पहले इस वाले कॉलम में, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, ये देखो हो गया। राधा सिंह पूरा अपर केस हो गया, यही था ना, कन्वर्ट इनटू अपर केस। राधा सिंह के बीच में स्पेस नॉर्मल है, तो स्पेस का कोई इशू ही नहीं हुआ। बट बाकी अपर केस में करना था, अपर केस। अब इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ से ड्रैग कर दो नीचे तक, ये सारा आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, ये सब अलाइनमेंट हो गया। डन। टाइप यस इन द चैट अगर ये वाला प्रॉम्प्ट क्लियर है, ये केस क्लियर है, टाइप यस इन द चैट, कम ऑन, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट। टाइप यस इन द चैट। थोड़ा सा मुझे पता है नींद भी आ रही होगी, सब थके होते हैं, कोई बात नहीं, बट जब कुछ लाइफ में अगर चेंज करना है, अपनी लाइफ को अगर उस लेवल के मुकाम तक ले जाना है कि आप आगे जाके 1 से 1.5 साल के अंदर एक एआई कोच बन सको, एआई कंसल्टेंट बन सको, एआई ट्रेनर बन सको, एआई मैनेजर बन सको, कुछ भी बन सकते हो रिलेटेड टू एआई, वॉट एवर द नॉलेज आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट 1.5 years। क्लियर? एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओपन योर मार्केटिंग एजेंसी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये तो बस अभी एआई का एक पार्ट ही, हमारा सिलेबस आपको क्लियर है। जिसके पास मेरा सिलेबस नहीं हो तो मुझसे चैट में ले लेना, हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं 1-1.5 साल में अगले। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, अगला बड़ा, थोड़ा सा बड़ा प्रॉम्प्ट है, कोई बात नहीं। आप लोग के दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठती जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं। नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में भी लिखोगे ना ये सब, तब भी वो सेम ही फॉर्मूला देगा। तमिल में लिखोगे तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, पंजाबी में बोलोगे तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश आनी कोई जरूरी नहीं है, एआई यूज करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूल्स सारी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? यहां पर क्या है, यहाँ ग्रेड देने, ग्रेड होता है ना, A B C D लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्रेडिंग देनी है, या फिर पास फेल आप बता सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसमें क्या लिखा है, B3, ये रहा B3। इफ B3 से F3 तक मार्क्स लेस देन 40 आ गए, इफ फ्रॉम B3 टू F3 एनी सेल, एनी सेल, सेल एक होता है, जैसे मैंने बोला ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है,
सेल एक होता है, ये याद रखना। ये पूरा सेल नहीं होगा, ये फुल इज नॉट द सेल, ये टेबल बन जाती है। एक ये होता है, एक सेल होता है। इफ एनी सेल हैज मार्क्स लेस देन 40, अगर मार्क्स लेस देन 40 हैं, देन शो फेल और एल्स कैलकुलेट ग्रेड। तब तो या तो फेल शो कर देना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कैलकुलेट करना ग्रेड। अब ग्रेड के क्राइटेरिया होंगे क्या? देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। इस प्रॉम्प्ट को देखो यहां से, देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। ऊपर देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट है। एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 500। भाई अगर 5 सब्जेक्ट है, एक पेपर 100 का हो तो 500 का पेपर हुआ टोटल। टोटल ग्रेड्स, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 500। क्लियर? ग्रेड रूल्स बता रहा हूं मैं, 500 के बाद फुल स्टॉप लगा देना। ग्रेड रूल्स, इफ B3 to F3 सम इज, B3 से लेके F3 तक का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 है, 400 से ज्यादा है या बराबर है, देन शो ग्रेड ए। तब ग्रेड ए शो कर देना। इफ B3 से लेके F3 का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, ठीक है, तो आप एंड, देखो इसमें कंडीशन लगाई है, 300 से ज्यादा है और 399 के बराबर है या कम है, देन शो ग्रेड बी। देखो ध्यान से सुनो, ए कब देना? जब 400 या 400 से ऊपर है, 400 और ग्रेटर देन 400, तब ए ग्रेड आएगा। अगर 300 से लेके 390 तक है, 399 तक है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड लेस देन इक्वल टू 399, देन शो ग्रेड बी। तब बी ग्रेड शो करना। इफ सम इज लेस देन 300, अगर सम लेस देन 300 है तो सी दिखा देना। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाओ, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी कर लिया, इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया मैंने, गया उसके बाद फॉर्मूला पूछूंगा मैं, इसका फॉर्मूला बनाओ। ओके, यहां पर लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, गिव मी फॉर्मूला। वैसे तो समझ जाएगा क्योंकि हम इतनी देर से ऊपर से ट्रेन कर चुके हैं ना कि फॉर्मूला ही तो पूछ रहे हैं इससे, और तो कुछ पूछ नहीं रहे। तो वो नहीं भी लिखोगे तो भी वो फॉर्मूला ही देगा। अभी देखो कितना बड़ा फॉर्मूला आएगा, जस्ट सी। इतना बड़ा फॉर्मूला मैं बना ही नहीं सकता भाई, मेरे पास नहीं है दिमाग इतना। तो जब मैं एक्सेल पढ़ता था तो भी मेरे पास इतना दिमाग नहीं चलता था, और अब तो मेरे पास दिमाग चलाना ही नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। और यहां पर देखो यार, देखो फॉर्मूला तो ऊपर है, यहां पे मैं एक चीजें बता देता हूं। यहाँ ये नीचे स्टेप भी देता है, देखो काउंट इफ B3 to F3 लेस देन दिस, चेक इफ एनी मार्क्स दिस। तो ये पूरा इस तरह से बताएगा, बता रहा है कि पेस्ट दिस इन एनी सेल एंड टू गेट द रिजल्ट। तो नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दे देता है कि अगर अगर सर ऐसा हुआ तो ग्रेड ए दूंगा, ऐसा हुआ तो ग्रेड बी दूंगा, ऐसा हुआ तो ग्रेड सी दूंगा। ये आप बता देता है हाउ इट वर्क्स। सिंपल से यहाँ पे कॉपी करो, कॉपी, वापस आओ उधर पर एक्सेल शीट पर, कॉपी कर दो। यहाँ पर फर्स्ट उसमें कॉपी कर देंगे अपन, ये यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ कंट्रोल वी, ग्रेड भी आ गया। क्यों? क्योंकि सम वही आ रहा होगा, 300 से 399 के बीच में आ रहा होगा। अब नीचे देख लेते हैं कि कितनों के ग्रेड आ रहे हैं, इसे नीचे ड्रैग कर दो, प्लस बनते कि ड्रैग कर दो, ये आ गया सारा। अब ये फेल क्यों दिखा रहा है भैया? क्यों? ये देखो ना 24 है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, अगर मार्क्स किसी भी एक सेल में एक बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम आ गए तो उसको फेल शो कर देना, उसका ग्रेड कैलकुलेट मत करना। तो यहाँ देखो 34 है, 24, और यहाँ पे देखो 35 है, 40 से नीचे है ना, तो इसलिए फेल हो गए बच्चे। अब आप बोलोगे सर हम तो एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं है, हम क्यों यूज करेंगे? तो भैया आप अपना यूज केस दूसरा बना लेना। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूले इस तरह से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी वो है, मैं यहाँ पर अगर समझाता हूँ आपको, जरा एक सिंपल सा बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम बनाने item 1, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने item 2, और यहाँ लिख दिया हमने item 3, ठीक है। अब item 1 के नीचे मैं सारा कुछ डाटा लिख दूंगा। अब डाटा डेट्स लिख देते हैं, डेट शॉर्ट में लिख देते हैं, टुडे डेट इज व्हाट, 9 है ना, तो 7, ऐसे लिख दो, 1, 1 जून, 2 जून, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सेम यहां पर भी लिख दो डाटा, यहां पर हम लिख देते हैं 31, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ हम लिख लेते हैं लाइक 29 से स्टार्ट कर दो,
देन 30, 31, लाइक 1 2 3 4। अब बोलोगे सर आपने डेट्स तो प्रॉपर नहीं लिखी। आप पूरा लिख लेना, अभी टाइम कम है। तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला बना लो, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी आइटम, ध्यान से सुनना जरा, कोई भी आइटम यहां पर हम उसमें बता देंगे एक्सपायर्ड और नॉट, ठीक है ना, एक्सपायर और नॉट एक्सपायर। इस डेट से पुरानी है तो एक्सपायर, इस डेट से नहीं है पुरानी तो नॉट एक्सपायर, सिंपल, क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला रेडी कर लो उसका। एक मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट क्या होगा, J3 है ना ये, J3 से लेके L3 तक, क्योंकि थर्ड के सामने आ रहा है ना ये, J3 से लेके L3 तक अगर आइटम 1, जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 1 या 1 से ऊपर है तो लिख देना नॉट एक्सपायर, और 1 से नीचे है तो लिख देना एक्सपायर, सिंपल। वहां पे जाके फॉर्मूला पूछ लो, आपका रेडी हो जाएगा फॉर्मूला। तो वहां पे एक्सपायर और नॉट एक्सपायर लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको यूज केसेस बता दिए। सिर्फ ये मत सोचो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में ही फॉर्मूले लगेंगे, इन एवरी इंडस्ट्री इट विल बी एप्लीकेबल, यू कैन जनरेट योर फॉर्मूलाज, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिफ्थ वाले पे देखते हैं अपन। हाँ भाई, अब ये वाला देखो जरा, इसको हटाते हैं थोड़ी सी देर में। हाँ, इधर फॉर्मूला यहां पर देखो, यहां पर क्या है, आपको, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेसमैन वालों के लिए, दोज हु आर पार्टिसिपेंट्स देन दोज हु आर डूइंग बिजनेस बेसिकली, उनके लिए बेसिकली है ये प्रोडक्ट आईडीज थी P01, P02, P03, क्लियर। प्रोडक्ट क्या था, ये P01 में माउस था, यहाँ पे मॉनिटर था, कीबोर्ड, प्रोसेसर, माउस फिर से आ गया, पेन, कीबोर्ड, वायर, माउस फिर से आ गया, माउस रिपीट हो रहा है, कीबोर्ड भी 2 बार रिपीट हो रहा है बाकी आई थिंक एज सच कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ये रीजन है कि इंडिया के किस रीजन में खरीदे गए। ईस्ट रीजन में माउस 100 क्वांटिटी सोल्ड हुए, वेस्ट रीजन में मॉनिटर 87 सोल्ड हुए, नॉर्थ रीजन में कीबोर्ड 92 सोल्ड हुए। लाइक दिस पूरा सोल्ड क्वांटिटी दिखा रखी है। अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट पे सपोज मैं डालता हूं वायर, ठीक है, तो मेरे पास उसकी क्वांटिटी आ जानी चाहिए लिखी, कितनी वायर सोल्ड हो गई अभी तक पूरे बिजनेस में, मेरे पूरे बिजनेस में कितने वायर सोल्ड हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहां पे मॉनिटर लिख दूं, मॉनिटर लिख दूं, जैसे एंटर बटन यहां करूं तो यहां पे मुझे उसका लिखा आ जाना चाहिए, कितने मॉनिटर सोल्ड हो गए। क्यों, क्योंकि मॉनिटर देखो यहां पर भी सोल्ड हुआ है, और मॉनिटर एक ही जगह, सॉरी माउस, माउस 1 2 3 बार हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है, अब ये तो मैंने छोटा सा डाटा लिया है, हो सकता है आपके पास 10,000 क्वांटिटी का हो डाटा, 1,000 हो, 500 हो, तो कितना प्लस करोगे मैनुअली, कैलकुलेटर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये रहा इन एक्सेल शीट, कॉलम बी, कॉलम बी, ये देखो कॉलम बी है ना, ये लिखा है, कॉलम बी हैज नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉलम बी में नाम है प्रोडक्ट्स के, एंड कॉलम डी में क्या है, क्वांटिटी सोल्ड है। इफ आई टाइप एनी प्रोडक्ट नेम इन सेल F3, ये देखो F3 है ना, ये रहा F3, यहाँ पे मैंने जैसे एक नाम लिखा, मॉनिटर लिखा है ना अभी, जैसे मैं लिखूं देन फाइंड टोटल क्वांटिटी सोल्ड, गिव फॉर्मूला, बस इतना सा लगाना है फॉर्मूला। Ctrl+C, गए वापस चैट जीपीटी के पास, चलो आ जाओ, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहां से फॉर्मूला बना लेंगे, ये डाल दिया आपने, Ctrl+V, क्लियर। हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी सेम फॉर्मूला देगा, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ये बना, ये किया हमने कॉपी, और ये बता रहा है कि आपको वहां पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे वो देखना जरा अभी आप, क्वांटिटी सोल्ड के नीचे पेस्ट कर दो, क्वांटिटी सोल्ड के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पेस्ट होगा, यहाँ प्रोडक्ट पे मत कर देना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहीं पर ही आएगा ना, देखना, है ना। हाँ फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा फॉर्मूला, यहाँ क्वांटिटी सोल्ड पे मैंने पेस्ट कर दिया है, देखो फॉर्मूला ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माउस, MOUSE, ये देखो 766 माउस आ गए, ठीक है। देखो ध्यान से जरा, फिर से देखना जरा अभी, ठीक है। फॉर्मूला पेस्ट किया, फॉर्मूला यहाँ पे करना है क्वांटिटी सोल्ड के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे सेव मत कर देना कॉपी, यहाँ करना है Ctrl+V, जैसे कि देखो ऊपर आ गया, जीरो दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है। अच्छा एक चीज और, माउस का अगर यहाँ M कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल M लिखना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ लिखा स्मॉल लिखा है MOUSE,
तो भी इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि माउस की स्पेलिंग को अल्फाबेटिकली इसमें कोई इशू नहीं आया। समटाइम्स आ सकता है, बट क्योंकि मेरा एक ऐसा केस हुआ था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसे, तो इसे मेरी डिटेक्ट नहीं करी थी। हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई थी, सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई थी, तब शायद इसने डिटेक्ट नहीं किया। स्पेलिंग गलत करके मैं एक बार देखता हूँ जरा। MO ऐसे ही करते हैं जरा, इसको पहले हटाना पड़ेगा। एक मिनट जरा, जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग विद इन फ्रंट ऑफ यू। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, MOSE करो, नहीं देता है क्योंकि MOSE है ही नहीं ना यहाँ पे। कैपिटल लेटर डजेंट मैटर, उसके सारे अल्फाबेट सेम होने चाहिए। ठीक है, बस ये याद रखना। MOUSE जैसे बताया, इसने 76 में बता दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिलीट करके देखता हूँ कीबोर्ड कितने सेल हुए। कीबोर्ड 220, क्योंकि देखो कीबोर्ड ये रहे 92, और ये रहा कीबोर्ड 128। 128 और 92 220 ही होता है। क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ चेक करेंगे पेन, पेन कितने हुए हैं, 340, ओ 342 हुए हैं, देखो 342 हुए हैं। क्लियर। सेम यहाँ पे आप बस हटाते जाओ, अपना प्रिंटर डालो, तो आपको अपने बिजनेस का पता लग जाएगा कितनी क्वांटिटी सोल्ड होगी, तो ये फॉर्मूला उस तरह से रेडी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट केस पर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 10-20 हो गया, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी केसेस हम कल लेंगे, मतलब वेडनेसडे को लेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ऑल्टरनेट चलेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, MWF में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गूगल जेमिनाई पे आ रहा हूँ। एक्सेल आज इतना है, प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी कल सुबह तक, आराम से आप करते रहो प्रैक्टिस। ठीक है, अब आ रहा हूँ थोड़ा गूगल जेमिनाई पे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज शेयर योर व्यूज। भरत सर, लवी सर, रितु मैम, यहां तक सब क्लियर है ना भैया आप लोगों को? दीप्ति मैम, सुमित सर, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, है ना? हाँ, बस 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 बस, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर। अब गूगल जेमिनाई के कुछ केसेस बताने मेरे को। अब ये गूगल जेमिनाई है क्या, पहले तो ये समझना है। गूगल जेमिनाई गूगल कंपनी का ही AI वर्जन है, AI टूल है। गूगल कंपनी का ही AI टूल है ये। गूगल अगर मान लो तो वो सर्च इंजन है, उसमें AI नहीं लगा है। जो गूगल है वो सर्च इंजन है, उसमें वो इतना AI इंटीग्रेशन उन्होंने नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, गूगल कंपनी, व्हाट गूगल कंपनी इज डूइंग, दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर AI। लाइक उसमें से गूगल जेमिनाई था, जो कि काफी साल पहले लॉन्च हो गया था। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, आ जाओ जरा। ठीक है, अब थोड़ा सा AI के बारे में हम थोड़ा सा डीप, ये भी AI चल रहा था बेसिकली, AI विद एक्सेल। ये इस तरह से सॉल्व किया ना, एक्सेल में कहीं पे भी नहीं अटकोगे, लाइव भर अब कहीं पे भी नहीं अटकोगे आप एक्सेल में। ठीक है, तो हम जरा सा पूछते हैं गूगल जेमिनाई के बारे में। गूगल जेमिनाई में थोड़ा सा ये गूगल सर्च इंजन कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो, मैंने ना लेटेस्ट ही अभी थोड़े दिन पहले ही 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है ये जेमिनाई। फॉर्मली इसको पहले बार्ड बोला जाता था, बार्ड, ये बार्ड नाम से लॉन्च हुआ था। इज अ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, ये भी एक AI चैटबॉट है, डेवलप्ड बाय गूगल, बेस्ड ऑन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ये एक डाटा साइंस की लैंग्वेज होती है, जैसे C++, जावा, ये सब लैंग्वेजेस है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ऑफ द सेम नेम इट वाज लॉन्च इन 2023, रिस्पॉन्स टू राइज ऑफ ओपन AI चैट GPT। It was previously based on LaMDA and PALM and LLMs। इनके ऊपर ये पहले बेस था, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कन्वर्ट हो गया। इसके बारे में और पढ़ना हो आप पढ़ते रहना। ठीक है, तो हमको गूगल जेमिनाई पे जाने के लिए टाइप यही करना है गूगल में, गूगल जेमिनाई। ठीक है, गूगल जेमिनाई को ही हमको टाइप करना है और इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इसके यूज केसेस बता रहा हूं मैं, यूज केसेस क्या है। क्लियर। जब आप फ्री वर्जन में रहोगे, फ्री, पेड, इसका भी पेड वर्जन होता है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है खरीदने की। टिल द टाइम यू आर वेरी मच एडवांस और हैविंग सम प्रोजेक्ट्स इन फ्रीलैंसिंग वर्क, तब तक, उससे पहले तो बिल्कुल भी मत खरीदना कोई भी टूल, जब तक मैं ना बोलूँ कि हाँ ये तो लेना ही चाहिए आप लोग को। मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स ना आने लग जाए, आपके पास फ्रीलैंसिंग वर्क ना आने लग जाए, तब तक कोई भी टूल पेड वाला लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो फ्री वर्जन में ही, उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तब अपन देखेंगे कि आपको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे हेलो अमित क्यों लिखा रहा है? भाई मेरी जीमेल आईडी पे जो नाम है वो अमित था। ठीक है, वो अमित के नाम से सेव था पहले, अमित चावला जीमेल आईडी बनाते ना जब, तो मैंने कुछ एक अपनी ये वाली जीमेल आईडी से लॉग इन किया है, ये अमित चावला 271090 से, तो इसलिए वो मेरा नाम इनिशियल यहाँ पे आपको दिखाएगा, आप करोगे आपका नाम आएगा। ये आपका हो गया, ये वाइट बैकग्राउंड है। यहां जाना सेटिंग्स में, नीचे यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ।
थीम्स में जाना, आपको डार्क थीम चाहिए आप ब्लैक कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि ब्लैक थीम चाहिए ब्लैक कर सकता है। फिर से देखो, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे ये सेटिंग्स एंड हैव लिखा है, यहाँ थीम्स में जाओ, लाइट पे ऑप्शन करोगे वाइट हो जाएगा, डार्क करोगे डार्क हो जाएगा। सिस्टम करोगे तो मुझे नहीं पता, सिस्टम नॉर्मल ही वही लाइट रहेगा। तो हम अभी लाइट वर्जन पे समझ लेते हैं इसको, ठीक है। लाइट वर्जन में क्या अच्छे से थोड़ा दिख जाती है सारी चीजें। डार्क आप अपने हिसाब से जब थोड़े से प्रो हो जाओ तो आप करते रहना उसमें, डार्क वर्जन में। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये क्यों सिखा रहा हूं मैं? ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि चैट जीपीटी तो आपको आता ही है यूज करना, इसको भी यूज करने की आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी में डीप रिसर्च वाला ऑप्शन फ्री में नहीं है, उसकी लिमिटेशंस है। यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को डीप रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को सबको ये पता होना चाहिए कि अभी जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कंपनी है एआई की वो है एनवीडिया। तो उसके बारे में समझते हैं, इससे पूछते हैं, भैया व्हाट डू यू, आई वांट टू नो अबाउट एनवीडिया कंपनी। ये पूछता हूं मैं इससे, ठीक है। ये माइक्रोफोन है, यहाँ से इसको भी ऑन करके बात कर सकते हैं मेरे से, देखेंगे वो यूज केस भी। तो अभी हम इसको पूछते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट एनवीडिया। ओके, विच डील्स इन ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी गेम्स वाले, अभी एआई में डील करती है, ग्राफिक्स भी बनाती है अभी भी। एंड एआई गिव मी गिव मी डिटेल्स इन ऑल डोमेन्स। ये लिख दिया करो। ऑल डोमेन्स का मतलब होता है कि आपको हर डोमेन के हिसाब से वो आपको आंसर दे देगा। एआई नहीं, और भी कुछ होगा कर रही होगी उसके बारे में बता देगा, इन ऑल डोमेन्स। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट होता है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट करना, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट देना। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसने सही कर दिया। एनवीडिया, एन VIDIA इज द स्पेलिंग, मैंने ऊपर ई कर दिया। इज अ टेक्नोलॉजी जायंट। जायंट क्यों बोला गया अभी समझना जरा। क्यों? क्योंकि 98% मोनोपोली है इसके पास। जितने भी एआई टूल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये सब ये लोग उसको होल्ड करते हैं, वहीं से सारी चीजें इनिशिएट होती है। That has revolutionized both the graphics industry एंड द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्राफिक्स कार्ड में तो इन्होंने 1992 में स्टार्ट किया था, अभी पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। इनिशियली नोन फॉर इट्स डोमिनेंस इन गेमिंग्स जीपीयूज, एंड द कंपनी strategically pivoted and leveraged its parallel processing capability to become a critical player in the AI revolution। इसका एक शेयर 12,000 रुपए का है अभी, 11,000 से 12,000 के बीच में जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में ये 50,000 को पार कर जाएगा, 50,000 पार हो जाएगा। क्लियर? इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज मिलीनियर्स हैं, ये तो बिलीनियर है। और इसके इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज $1 million कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, इसलिए दे आर हैविंग $1 million विद देम। ये पहली कंपनी है वर्ल्ड की जिसके सारे एम्प्लॉयज मीन सारे। एनवीडिया इन ग्राफिक्स कार्ड, इसके बारे में बता रखा है इसने, ठीक है। जिसको बहुत डीप नॉलेज है उसको पढ़ता रहे वो। एंड हेयर एनवीडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चीज में डील कर रही है। जीपीयूज आर्किटेक्चर बनाती है, जीपीयूज बनाती है ये। ओके, पैरेलल जीपीयूज कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ये जो हम आपको क्या लगता है कि मैं यूज कर रहा हूँ? ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लोग हैं? हो सकता है अभी आप पैरेलल कोई आप में से कोई यूज कर रहा हो पार्टिसिपेंट्स में से ही, मेरे पढ़ाते पढ़ाते किसी ने ओपन कर लिया हो साइड में। और इस जैसे ना जाने कितने होंगे वर्ल्ड में जो अभी कर रहे होंगे, किनका टाइम जोन अलग है। कोई मॉर्निंग में होगा अभी वो यूज कर रहा होगा, यू नेवर नो। इस कंपनी के ही लोग कितने यूज कर रहे होंगे अभी। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस को हैंडल करता है साइमल्टेनियसली एक साथ, मेकिंग देम आइडियल फॉर द मैट्रिक्स एंड वेक्टर कैलकुलेशंस सेंट्रल टू डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। टेंसर कोर्स, ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में इसने बताया हुआ है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, अच्छा आप इसको पूछते हैं हाउ मच इट इज होल्डिंग द मार्केट ऑफ एआई। सॉरी, जस्ट सी क्या देखते क्या आंसर आता है। देखो मैंने बोला था वही आया। सम एस्टिमेट्स गो एज 90 to 95% ऑफ एडवांस एआई चिप्स, जितनी भी एआई चिप्स बनती हैं, जैसे सारी कोई भी हो टूल्स उनकी चिप्स बनती हैं, तो ये सब 90 से 95% ये लोग होल्ड करते हैं पूरा मार्केट। ये इनके पास बेसिकली मोनोपोली, दैट्स व्हाई एवरीवन इज मिलेनियर।
अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लगा है, यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे इसके बारे में और डिटेल्स आ जाएंगी, यूट्यूब चैनल आ जाएगा इसका, आपको वो देखना है वो डिटेल में देखो, आपको इस तरह से एनवीडिया आ जाएगा पूरा, उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हर जगह देखो आपको यूट्यूब का एक लगा दिया इसने, आप इस पे जैसे ही डायरेक्ट करोगे, ये यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर किया है यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है राइट साइड में, ये देखो राइट साइड में हाईलाइट हो रहा है, इस पे जाओगे क्लिक करोगे यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, एक यूट्यूब चैनल आपका ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसके बारे में और पढ़ सकते NVIDIA is the world's most powerful chip maker with a market cap of more than $3 trillion. हो। दिस इज द But सीईओ। behind NVIDIA's record revenues and profits is an overlooked cost. The environment. सो दैट्स द बेसिक व्हाट कैन फीचर, कि आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, अब आप जो भी करना है आप यहाँ करो। धीरे धीरे मैं आपको जेमिनाई के और फीचर्स आपको बताता जाऊंगा कि आपको और किस तरह से यूज करना चाहिए। ऑन वेडनेसडे वी विल एक्सप्लोर यहीं से एक्सेल के जो बचे हुए पार्ट और जेमिनाई और सम अदर टूल्स आल्सो वी विल टेक क्लियर। और आपको इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, यहां पर देखो डीप रिसर्च ऑप्शन है, डीप रिसर्च। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा और न्यू चार्ट ओपन हो जाएगी, बोलेगा न्यू चार्ट ओपन करो, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा और न्यू चैट के लिए ऑप्शन रहेगा, ब्लैंक पेज पे सारी चीजें करेगा। ये आप किसी भी टॉपिक को बोलोगे ना तो उसको ये कम से कम 5 मिनट्स अप्रोक्सीमेट लेगा, नॉट 5 तो 3 to 4 मिनट्स तो मिनिमम लेगा। क्यों? क्योंकि ये डीप रिसर्च करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेट के पास वेब पेजेस, जितने भी वेब पेजेस हैं, वेब पर जितनी भी नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक एक को पहले स्कैन करेगा, वो स्कैन करेगा, उसके सारी उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकालेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब हो सकता है वो एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें 10 चीजें हो, आपने बस एक ही चीज पूछी है, तो उस 10 डॉक्यूमेंट में से उस 10 टॉपिक में उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्कैन करेगा, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट एन मीडिया कंपनी, ओके, एंड इट्स मार्केट वैल्यू, सिंपली हिट द एंटर बटन। अब देखना जरा ध्यान से, अब प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से होगा, अभी टाइम ले रही है, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि आपने डीप रिसर्च पूछा ना। अब देखो इसकी इसकी अब अलग तरीके से हो गई है, अभी दिस इज नॉट द आउटपुट, ये रिसर्च कर रहा है वेबसाइट्स, फाइंड अ जनरल ओवरव्यू ऑफ इनमीडिया कॉर्पोरेशन, आइडेंटिफाई दिस, इन सब चीजों को ये रिसर्च कर रहा है। अब बैकएंड में ये दिस इज नॉट द आंसर, एनालाइज कर रहा है, क्रिएट करेगा रिपोर्ट और ट्राई अगेन विद विदाउट। अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो यहाँ पे विदाउट पे क्लिक कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, अब ये काम करना है, इसने स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। इतनी इतनी चीजें ये रिसर्च करेगा। देखो रिसर्च चालू हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो गोल गोल घूम रहा है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग जस्ट सी, ये रिसर्च आपके सामने हो रही है, रिसर्च अप्रोच। बोल रहा है आई एम स्टार्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनवीडिया, कवरिंग इट्स हिस्ट्री, प्रोडक्ट्स, मार्केट वैल्यू, सब कुछ निकाल रहा है। कहाँ कहाँ, ये देखो कितनी वेबसाइट्स पे जा रहा है, ये देखो इतनी सारी वेबसाइट्स पे जा रहा है, ये बैकएंड में हो रहा है काम, बट आपको दिखा रहा है कि मैं ये चीजें सर्च कर रहा हूँ, स्लाइड जीनियस डॉट कॉम पे जा रहा हूँ, एनवीडिया न्यूज पे जा रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार पे जा रहा हूँ, आईटी पीआरओ पे जा रहा हूँ, डेवलपर पे जा रहा हूँ, ये सारी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो जहाँ ये बफरिंग कर रहा था ना, इतना डाटा इसने लोड कर दिया। जब ये फुल हो जाएगा, जब ये पूरा पिंक हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, मैं इसको जूम करता हूँ, हो जाएगा जूम आई थिंक, ये देखो अभी इतना हो चुका है प्रोसेस, ये धीरे धीरे पूरा घूमेगा, ये पूरा फुल होएगा, तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। ये इसे कहते हैं डीप रिसर्च। अब ये उनके लिए जो पीएचडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, सबसे बेस्ट टूल है। कोई भी आपको पेपर, रिसर्च पेपर बनाना हो, किसी टॉपिक पे रिसर्च करना हो, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको दोनों फीचर बता दिए, नॉर्मल भी और रिसर्च भी। अब यहां तक कोई डाउट है? अब ये यहाँ से 5 मिनट लेगा, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, ये जब तक देखो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले छोटा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ये देखो, स्लोली स्लोली इट इज इंक्रीजिंग, क्लियर। सो आई एम सेइंग कि ये थोड़ी देर में 5 मिनट्स लेगा, पूरा पूरा ऊपर डिटेल रिसर्च बताएगा। ये देखो इतना ये सब रिसर्च कर रहा है यहाँ से, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, क्लियर। सो आज के सेशन में इतना ही। आपके कोई डाउट्स हो, फीडबैक्स हो, प्लीज हैप्पी टू शेयर। ओपन योर वीडियो फॉर 1 मिनट, देन वी विल डेफिनेटली वी विल एंड द सेशन। जोशी जी, दीप्ति जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। आपके कुछ और एक्सपेक्टेशंस हो, कुछ डाउट्स हो, पूछो पूछो। अगर आपको आगे लगता है कि हमारे साथ कंटिन्यू करना है, एनरोल्स करना है आगे, पूछो हमसे आप।
I will be happy to answer. Ritu ma'am has already enrolled. Joshi sir has already enrolled. Well, I want to listen from Deepti ma'am, Bharat sir, Sumit sir, and Lavi sir. What are your views? Anything you want to discuss? Joshi sir, is there any doubt or your feedback from today's session? How is it related to working professional and non-working also, of course? It is a very great platform, sir, to learn and to explore ourselves. Even outside people, I learned so many webinars, but they are not giving that much confidence that means they are giving the material, but there is no proper coordination Hmm. with them. Basically, what I have observed, na, they are charging like anything, but what if we talk about ना कि सामने वाले की ग्रोथ हो, उन दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट. मैंने भी बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं अटेंड. बहुत ही कम मेंटर्स ऐसे मिले जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि आगे ग्रो करना है तुम्हें. तो ये चीज मैं उनसे ही सीखता हूँ. मतलब मैंने अपने मेंटर से ही सीखी है कि सामने वाले को भी वो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए. सिर्फ डोंट लुक आफ्टर योर ग्रोथ ओनली. लाइक Correct. बच्चों वाला बैच है हमारा, वो अलग चलता है. मतलब मीन्स उनको ग्रोथ फील होती है. तो वेन एवर ग्रोथ इज देयर ना, तो मजा आता है पढ़ाने में. या समथिंग आई एम चेंजिंग समवंस लाइफ. इट्स मेंटल माइंडसेट बेसिकली. तो Correct. जोशी Correct. जी, अच्छा लगा आपने शेयर किया. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू. कीप लर्निंग सर, कीप लर्निंग. Sure, sure, definitely. As you have taken for the whole year subscription, keep learning, keep practicing on daily basis. That's why मैंने इसको alternate रखा है कि एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन प्रैक्टिस करो. Correct. देन पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करो. क्योंकि धीरे धीरे मटेरियल इतना हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं. तो डेट्स व्हाई आई एम गिविंग गैप आल्सो. डेली रखने का कोई सेंस नहीं है. थोड़ा Correct. पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो. दीप्ति मैम, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग मैम? The course is looking nice. It's just that कि मतलब मुझे ना, I'm not dealing with Excel and all. I am हाँ. actually looking after the finance of my husband's business. तो वो तो सब अकाउंटेंट ही रेडी करके हमको दे देता. We just look through that. और ओके. नॉर्मल एक्सेल शीट बनाने आ रही. मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स में इंटरेस्टेड थी सर. मैं 1 साल का. मैम शॉर्ट टर्म में मैं, देखिए मैम, हमारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं. लाइक वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, एक्सेल हो गया, देन एआई टूल्स हो गए. तो शॉर्ट टर्म में आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि वो चेंज मैं आपके अंदर ला पाऊंगा. तो आई हम्म. बिलीव इन मीन्स लिटिल बिट लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 months मिनिमम. 6 to 8 months में ऐसा होगा, इतना मटेरियल हम आपको ट्रेन कर देंगे. बिकॉज इफ वी गो फॉर थ्राइस इन अ वीक, सो 4 week 12 classes in a month basically. It will be like this only, na? 4 weeks and 3 classes, हम्म. 4 is a 12. So in 12 हम्म. classes or 24 classes, 2 months, 3 months means drastic change. I cannot promise you. So Okay. short, I have not made any kind of thing like कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इतने दिन में हम यहाँ पे खत्म कर देंगे. इट इज नॉट हम्म. पॉसिबल फॉर एवरीवन. सबका पेस अलग है. लवी सर हम्म. का पेस अलग है, जोशी सर का अलग है, सुमित सर का अलग है, भरत सर का अलग है. तो मैं Okay. अगर एक प्रॉपर एक जल्दी कोर्स खत्म कर दूंगा तो इट डजेंट फील गुड. फिर उनको फिर अगेन वापस एनरोल करना पड़ेगा. तो बेटर कि इस अमाउंट में, तो अमाउंट तो ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में. कभी किसी हम्म. को चाहिए पर्सनल, दे कैन आस्क. बेसिकली आई थिंक आप लोग का 1200 पर मंथ है. वर्किंग प्रोफेशनल लमसम में जाते हो तो 10,000 इट इज. क्योंकि 1200 इंटू 12 करते हैं तो 14,500 समथिंग आ रहा है. तो लमसम देते हो तो 10,000 आ रहा है. तो 4,500 का प्रॉफिट हो रहा है आप लोग का. तो दैट इज. एंड फैमिली मेंबरशिप तो बेस्ट है सबसे. जो फैमिली मेंबरशिप हमने लॉन्च किया है वो तो लाइफ टाइम है आप लोग का. तो दैट इज बेस्ट. तो मैम स्लोली स्लोली आई कैन से कि आएगा चेंज. एंड योर एक्सपेक्टेशंस लाइक कि आपको जो फ्रीलांसिंग वर्क है वो किस टाइप का चाहिए बेसिकली. व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट यू वांट See, टू डू. sir, I'm basically a homemaker. ओके Okay, ओके. and I did my ad and PR in Symbiosis, and now when my kids have grown, Ishan is in 6th standard. कि या आपके यहाँ पे उसने किया है. Then my elder one is also in his first year of college. I want to ओके. do something, so I'm in fact just trying to figure out also what to do. So I thought this is a interesting platform. एंड या एड तो एंड पीआर इज माय पोस्ट ग्रेजुएशन सिम्बाइसिस से मैंने किया था. तब तो मैं जॉब वगैरह नहीं कर पाई. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लोर कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना. सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू लर्न दिस स्किल. सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक टॉपिक लेता हूँ नीश का. नीश हाँ एवरीबॉडी जी. नोस. ओके ओके फाइन. नीश, NICHE, नीश. Okay, niche means areas. In हम्म. what areas you can make your career.
तो हम थोड़ा सा एक दिन मैं आप लोग को नॉट इन MWF एक एक्स्ट्रा क्लास में लेता हूँ, ग्रुप में ही मैं डाल दूंगा कि हाउ टू डिसाइड योर नीश बेसिकली। तो एक नीश के ऊपर अपन एक टॉपिक लेते हैं, उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट सर यू बिकॉज यू नो आई टचू डोंट वांट टू अर्न, मतलब मेरे को पैसा कमाने की प्रभु कृपा से कोई जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम हैविंग टू मच ऑफ फ्री टाइम, यस यू नो। तो अभी क्या यूटिलाइजेशन। करे, बैठ के आप हाँ हाँ कुछ तो क्रिएटिव करो ना, कब तक कितना कर लेंगे यस हम यस लोग यस भी। यस यस यस। वन मोर थिंग आई कैन से कि मैम जो हमारा ये तो सिल्वर मेंबरशिप है, अगर आपने हाँ एआई जी। एजेंट्स के बारे में सुना होगा तो वो हम एडवांस वर्जन में सिखाते हैं। तो एआई एजेंट भी आप हमसे सीख सकते हो इन डायमंड मेंबरशिप। तो वो हम्म। दैट इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन द कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स बेसिकली। एआई एजेंट्स के बारे में आप सर्च करना एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो मैं एक नीश के ऊपर एक दिन टॉपिक ले लेता हूँ कि नीश क्या होता है, उसमें क्या क्या एरियाज में आप अपना करियर बना सकते हो फ्रीलांसिंग में, वर्क फ्रॉम होम ओनली। तो एक दिन वो टॉपिक लेते हैं, उस पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर हाउ यू वांट अस टू डू द क्लास, लाइक एक लैपटॉप साथ में रखें एंड फोन पे आपका क्लास ले एंड वी शुड स्टार्ट डूइंग इट, और जस्ट नहीं राइट नहीं इट नहीं, लाइक नेवर नोट नेवर वाइज? नेवर, नो नो नो। जब तक मैं ना बोलूँ पैरेलल करना है तब तक नहीं, आप बस सुनो, प्रैक्टिस बाद में करो। अगले सुने और लिखे बेसिकली, नोट्स हाँ, कर, बेसिकली नोट्स नोट्स, जैसे। इंपॉर्टेंट नोट्स एंड सुनिए। प्रैक्टिस बाद ठीक में है। करो, पैरेलल मत करो। पैरेलल जब मैं बोलूँ तब करो। जब मैं हाँ। बोलूँ कि फॉर एग्जांपल इमेज बनानी है, इमेज हम्म। जनरेट करनी है, तो मेरे साथ साथ कर लो थोड़ा सा। प्रॉम्प्ट सीख हम्म। लो मेरे साथ कैसे बनाना है, स्टाइल्स क्या होते हैं प्रॉम्प्ट्स के वो सीखो, लिखो, नोट्स बनाओ। लिखोगे तो के दिमाग में चीजें बैठती हैं। ऑल टाइम मैं हम्म। एकदम प्री मेड सब कुछ बना के दे दूं तो वो पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। जो लिखा होगा तो राइट। ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएगा आप लोगों को। हम्म। तो दीज आर द थिंग्स। So first, I would like to join this 1 month this thing like ओके फाइन package. फाइन फाइन फाइन। Let me see how can I adjust, because it's a dinner time and अभी भी मैं हाँ बीच हाँ में यस उठी थी यस। बच्चों को खाना देने के ओके लिए. ओके ओके। If I adjusted well, or I mean हाँ anyways, हाँ if I get into it properly, then I can adjust it well. So ओके then I can convert the course, but I will be joining. I want to join because I really want to do something. ओके Let's ओके। You just go for 1 month, then we will see. Just go Yes, sir. for one Yes. month, then you can upgrade after that also. That will fine. Hmm. So Sumit sir is asking, Sumit sir, detail AI agents, but that will be in a diamond membership. That is different. Okay. So उसमें basically हम AI agents deploy करना तक वो हम उसको करेंगे। Could you please brief हम AI agents का काम होता है automations। तो automations हम उसमें करेंगे N8N से। N8N एक आपका एप्लीकेशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ N8N से। यहाँ से हम करेंगे, make.com से भी होता है पर मैं N8N फॉलो करता हूँ। वहां से हम एआई एजेंट्स बनाएंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो ऑटोमेट करेगा हमारे सारे वर्क को। और फिर हम आगे इसको जाके अगर हमारा पूरा पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है तो हम उसको आगे कंपनीज वेर एवर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज देयर उसको हम सेल आउट कर सकते हैं वहां पर फॉर 1 लाख पर मंथ, ऑल्सो 50,000 पर मंथ लाइक दिस। और वो रेगुलर बेसिस पे आपके वो डाटाबेस पे रहेगा तो वो कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो दैट इज द एआई एजेंट बेसिकली। और इसका एक डिटेल हम ले सकते हैं बाद में भी, सेक्शन में बता दूंगा आपको कि And कैसे वर्क करता है, बट राइट नाउ इट इज इन डेवलपिंग मोड। तो ये एआई एजेंट्स बेसिकली आपको अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं। अभी जैसे राइट नाउ दिस इज द मंथ ऑफ, दिस इज जून आई थिंक, है ना। तो वो एआई एजेंट्स का बेसिकली मेन क्लास मैं अराउंड अक्टूबर नवंबर में हम उसको डायमंड मेंबरशिप में हम स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर नवंबर। थोड़ा सा अभी लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है अभी एक्चुअली। no, actually, I'm following that thing. So just ओके ओके ओके। irritated. So I thought यस, identify what the things you are going to discuss and all. AI agents are the game changers will be. They are basically online robots. ये ऑनलाइन रोबोट्स हैं, ये रोबोट्स का काम करेंगे आगे जाके। ओके, यू Yeah, जस्ट I'm already following some content, ओके something. So and ओके। it's interested. So I mean, सो वो जो आपने जो सेम देखा है वही बस वही सेम हम पढ़ाएंगे आगे जाके, बट दैट विल बी इन ओनली डायमंड मेंबरशिप, नॉट इन द सिल्वर। डायमंड and when you are planning to start that? डायमंड इज ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे दिस वीक ओनली, दिस वीक No, you सैटरडे। said that you are going to start that in August or something. What was नो that? नो नो, दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी विल टेक, उससे Okay, पहले you are और going to काफी touch टॉपिक that है। topic in August. या Okay, पर्टिकुलर got it. टॉपिक विल बी इन अक्टूबर एंड नवंबर। Okay. या And this in this course, that this yearly subscription, what other things you are going to discuss? Because ओके, say जस्ट अ this मिनट, this आई AI. एम शेयरिंग द पीपीटी, जस्ट अ मिनट सो दैट बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। आई एम शेयरिंग द पीपीटी, Mhm. जस्ट इट्स ऑन कैनवा आई थिंक, यस।
काफी लोगों ने उस दिन संडे को अटेंड नहीं किया, तो उनको काफी चीजें क्लियर नहीं है, तो ये अच्छा है कि मतलब कि काफी चीजें क्लियर हो गई। And I was having one more concern since I works for the US client, right? ओके ओके ओके। So the timing will be a kind of tough for me because I log in at 1 and I get drop at 10. Someday if the client call is there, so I might have to extend 1 more hour or 30 minutes. So I think that time will clash. रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर सर, रिकॉर्डिंग्स यू कैन चेक एनी टाइम, बिकॉज टाइमिंग का कंस्टेंट तो हर जगह ही आएगा कुछ ना कुछ, तो just but I Mhm. we will discuss on that Uh, also, sharing this. Again, if the recording will be there, and if because live session has its own flavor. Yes 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 I know, लाइव का अलग ही वो होता है, जो एक बार लाइव में सीख लिया तो सीख लिया, वो रिकॉर्डिंग Correct. से टाइम निकालना ही पड़ता है। And recordings, I mean, it will get delay. Okay, we'll follow next Yeah. day, next hours, like that. So basically these are for children, and this is for MWF 9:30 to 10 basically, but it goes around 10:13, 10:15 or 10:30. What you will learn: AI tools, animated videos, ebooks, publishing on Amazon and Gumroad, prompt engineering, Canva tutorials will be there, basic video editing will be there. Okay, with the help of Filmora. Basic means यहाँ पे Filmora से video editing हम आपको सिखाएंगे. Lifetime Okay, recordings. so Yeah, can I put some question there? yeah, definitely. Okay, so once you say the basic video editing, so you are going to follow any tools or any This UI? Filmora software, Filmora Okay, so that 14. is the subscribed or that, I mean, the I will give pirated. you that, we will give you as a bonus. It's Okay, crack the version. We subscription, will I give. mean, your subscription will be there. Yeah. Okay. Lifetime this Canva Pro for 1 year we will give you. Filmora 14 we will give you. Canva And and Canva Pro Filmora. 1 year free, 1 year with all its features, right? All features, all features, all features. Okay. So Okay. that's both include 10,000 only. 1 year Mm. Canva Pro subscription is 5,000 you can see. Filmora is around 5,000. तो bonus is हमका 10,000 दे रहे हैं आपको. And the fee structure is this: 1,200 per month or lump sum 1 time. because 1,200 into 12 is 14,400. तो lump sum देते हो तो आप तो 4,400 का आपका प्रॉफिट है. So this Yeah, is thanks. yeah. So सर these are the इसमें things. इसका कोर्स क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आप हमें बता देंगे इधर इस मैम वाले कोर्स का? these things will be there मैम. इसमें ओके। मैंने एक्सेल भी जोड़ दिया है, एक्सेल हाँ एआई भी मैंने जोड़ दिया इसमें. एक्सेल यहाँ पे लिखा नहीं था. एक्सेल ऑल्सो आई हैव इंटीग्रेटेड एआई टूल्स. जैसे मैंने आज गूगल जेमिनी पढ़ाया, तो एक एक टूल तो डेली होगा ही होगा जब भी क्लास होगी. फिर जैसे एक्सेल थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, एआई टूल चल रहा होगा, तो देन वी विल कम हियर एनिमेटेड वीडियोस के ऊपर इमेज बनाना सिखाएंगे, फिर उसको एनिमेशन कैसे देना है वो बताएंगे. जब आपका ये सब रेडी होगा तब हम आपको वीडियो एडिटिंग पे लेके जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास आपको इमेज ही क्रिएट नहीं करना आता है, उसको एनिमेशन देना नहीं आता, तो वीडियो एडिटिंग कैसे करोगे? तो मैम दिस इज द मेजर एरिया वेयर यू कैन गेट द क्लाइंट्स, वीडियो एडिटिंग ओनली. ये सबसे राइट। ज्यादा क्लाइंट्स को चाहिए होता है ये. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर वन थिंग ऑल्सो. मैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मोमोज वाले हैं, सैम मोमोज, तो उनको एक सैंपल्स भी बनाए थे हमने, इधर उधर दूसरी कंपनीज के लिए भी बनाया हमने. मैं आपको सीजीआई एड्स भी हम सिखाएंगे आपको. सीजीआई एड्स आपने सुना होगा, कंप्यूटर जनरेटेड. लेट मी ओपन द व्हाट्सएप. इसमें बहुत सारी चीजें जो है जो अपडेटेड होती जाएंगी, उसमें ऐड होती जाएंगी उसमें बेसिकली. तो आई बिलीव इन जो भी अपडेटेड आता जाए हम आपको ऐड करते जाएं उसमें. तो लाइक दिस. एक मिनट जरा वहां जाना पड़ेगा मुझे. कहाँ पे? शेयरिंग द स्क्रीन. ये हमने मास्टर क्लास में भी लिया था. यू कैन जस्ट सी दिस. These are CGI ads for any company you can do. Just see. For
another thing. और मैं दिखाता हूँ एक let me open others. So these are the part of animation, basically CGI ads. So many things will be there. So that's why I'm saying, ma'am, कि slowly it will cover because short में perfection नहीं आ पाएगा. मैं ही आपको उतना perfect नहीं सिखा पाऊंगा. तो इसलिए मैंने थोड़ा आप लोग से टाइम मांगा है. This is the reason basically. I think Deepti ma'am's doubt was there. Is there any other doubts? Are there any doubt? Lavi sir, any doubt? No, sir. Okay. Everything is clear. Okay, that's great. So whenever you think, please share your feedback in the group also if you want to share something. Otherwise, you can ask personally. चैट पर आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो. रिकॉर्डिंग्स मैं इस सेशन की जरूर मैं आप लोग को दे दूंगा बिकॉज आपको ये हमारी तरफ से एक तरीके से बताने के लिए था कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं और व्हाट आर द थिंग्स विल बी देयर एंड यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स एनीवन. मींस ये इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज मिशन ये है कि पूरे सिटीजन्स का माइंड सेट शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे हर एक सिटीजन्स को एआई नहीं आएगा हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते. हम डेवलप्ड कंट्री में काउंट कभी नहीं होंगे अगर हमारे हर एक सिटीजन को एआई नहीं आएगा. तो हम चाइना सिंगापुर यूएसए दुबई कभी नहीं बन सकते. वहां हर एक बंदे को आता है. एवरीबडी इज क्यूरियस टू लर्न. यहाँ हम सोचते ही रहते हैं ठीक है अभी आया है देखेंगे कहीं हमको रिप्लेस तो नहीं कर देगा. हमारी सोच अलग ही चलती है. वहां होता है कि फटाफट सीख लो और आगे इसमें देखो कि क्या स्कोप है. वाई ऑल द टूल्स आर फ्रॉम चाइना एंड सिंगापुर क्योंकि वो इतने मेहनती हैं वो इतने इनोवेटिव है वो इतने डेडिकेटेड है. डेडिकेशन इज द की और क्यूरियोसिटी टू लर्न. मुझे लगता है यही उसका एक रीजन है कि चाइना 1970 में हमारे चाइना और हमारी इकोनॉमी में सिर्फ $10 बिलियन का डिफरेंस था. आज हमारी $4 ट्रिलियन है उनकी $70 ट्रिलियन है. इतना फर्क है. हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो 70 ट्रिलियन में. इतना गैप आ गया. डेडिकेशन हमारे यहाँ डेडिकेशन नहीं है. हिंदुस्तान में करप्शन ज्यादा है डेडिकेशन कम है. बस वो चाहते हैं कि शॉर्टकट कितनी जल्दी से हो जाए. मतलब मैंने जब गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखा है वहां भी डेडिकेशन नहीं दिखता है. सर्विसेज देना प्रॉपर. That's why AI is dominating and this will means play a very important role for business purposes. जब AI agents बनाना जो सीख गया AI agents अगर बना लिया किसी ने आगे डिप्लॉय करना वो सीख गया सेल करना उसे आ गया कहाँ पे किस जगह की जरूरत है तो वो गेम चेंजर हो जाएगा बाद. सो दीज आर द थिंग्स. सो आई होप आई थिंक 10:52 ज़्यादा ही हो गया इस टाइम तो आई शुड आई थिंक वाइंड अप. कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए अदरवाइज वी विल वाइंड अप. थैंक यू. इज देयर एनी डाउट? दीप्ति मैम जोशी सर एनी डाउट? ओके आई एम एंडिंग द वेबिनार. थैंक यू. आप लोगों के कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू फी स्ट्रक्चर प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन पर्सनल विंडो.